काइंडली अपने माइक ऑफ कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज अवर lecture number 2, pressure expressed in height of the fluid. Last time we discussed hydrostatic law, and as a conclusion we prove this formula, H is equal to P over gamma, और P is equal to gamma H। यानी प्रेशर आपने कहीं भी फाइंड करना है तो आपने P is equal to gamma H जेन के अंदर रखना है। P is equal to gamma H, P is pressure, okay? So whenever you are required to calculate pressure, then you will use this formula, P is equal to gamma H. And many of the times we express pressure in terms of pressure head, यानी हम H को ही प्रेशर लेते हैं। हाइड्रोलिक्स में यानी या वाटर रिसोर्सेज में जब भी हम प्रेशर की बात करते हैं तो हम प्रेशर हेड की बात करते हैं, ठीक है? मीन्स P ओवर गैमा, यानी प्रेशर हेड कितना है। यानी हम ये कहेंगे कि इस रिजर्वायर का प्रेशर हेड कितना है, तो इसका ये मतलब होगा कि इसका हेड कितना है, डेप्थ कितनी है इसकी, ठीक है? सम टाइम हम उसको P की फॉर्म में करते हैं और सम टाइम हम जो है ना उसको H की फॉर्म में। अगर H की फॉर्म में करेंगे तो दिस इज कॉल्ड प्रेशर हेड, और अगर सिर्फ P की फॉर्म में करेंगे तो दिस इज सिंपल P। This is pressure, this is head, pressure head. So we also discussed that pressure is expressed in height of fluid, okay? And height depends upon your reference level. For example, for this plane, if your reference level is this is 0, 0, then this is the center of this plane is 60 meters, and this water surface is at 150 meters. But for the same level, if you change the reference level 0, 0, 0, then you can see that this is below the reference level, the depth is in minus sign, and this is with the positive sign, okay? Pressure head, P is equal to gamma H, and H is equal to P over gamma. Then we have to solve this numerical assignment, the absolute pressure, gauge pressures. Then we see some measurements of pressures. We discussed barometers, Bourdon gauge, pressure transducer, piezometer column, simple manometer, differential manometers. Up till now we already discussed barometers and Bourdon gauges and pressure transducers up to piezometer. Now we are going to piezometer, okay? Piezometer is a device. It is the simplest form of instrument used for measuring moderate pressure. For example, this is a pipe, and these are two openings, okay, with vertical pipe-like structure. Whenever some water flows inside this conduit or pipe, some water will go up, okay, as a capillary rise. Due to capillary action, this will rise up to some level. So this is your head, this is your pressure. Distance from the center of this pipe to the top level of this capillary action, this is called P over gamma, or this is called H, okay? Manometers are like piezometers, but the difference is that, as you can see in piezometer, as you can see in piezometer, yeah, the pressure of the liquid that you are going to find is the same as the liquid which is available in this tube. You are just insert this tube. आपने एक just tube लगाई है, इसमें पानी ऊपर चढ़ा, यानी फॉर एग्जांपल ये जो भी लिक्विड है ना, ये जो है वाटर है, तो यहाँ पे भी वाटर होगा डेफिनेटली। अगर यहाँ कोई ऑयल है तो यहाँ भी ऑयल होगा। लेकिन जब आप ज़रा और प्रेशर बढ़ाएंगे तो अब ये इसको कितनी हाइट पे रखेंगे, इतना ज़्यादा हाइट तो हम नहीं रख सकते। तो फिर अल्टीमेटली क्या होगा कि थोड़ा प्रेशर बढ़ने से इट विल स्टार्ट ओवरफ्लोइंग। इसका मतलब है कि एक खास लेवल तक जाके आप उससे ज़्यादा फिर प्रेशर अगर आए तो आप उसको फाइंड नहीं कर सकते बाय यूजिंग पीजोमीटर। तो अगर मैं इसकी जगह मरकरी लगा दूं, मरकरी विच इज़ हैवियर 13.6 टाइम्स हैवियर देन वाटर, then what happens,
आफ्टर अप्लाइंग सम प्रेशर, ठीक है, तो मरकरी थोड़ा सा मूव करेगा। इट मीन्स हम ज़्यादा प्रेशर भी मेजर कर सकते हैं, यानी जो मरकरी की मूवमेंट है वो कम है, इसलिए हम उसको वो हैवी है वाटर से, तो उसकी रिलेटिव मूवमेंट से हम जो है ना प्रेशर निकालेंगे। पीजोमीटर के केस में तो सिंपल, हमें पी ओवर गैमा का पता, ये एच की फॉर्म में आ गई, ठीक है, ये आपने ये ज़हन में रखना, पी ओवर गैमा को। तो लेकिन मैनोमीटर में हम क्या करेंगे, दिस इज द असेंबली ऑफ मैनोमीटर, ठीक है, ये आपको डायग्राम नजर आ रही है। एज यू कैन सी दैट दिस इज अ पाइप एंड दिस इज अ यू ट्यूब, यू शेप ट्यूब, यू शेप है, ठीक है। Some liquid is available here somewhere in this pipe, okay, which is represented with dashed lines, and mercury is filled in this section, which is represented with black color. You can see that. And from the center line to ZZ is the point of, this is the meeting point of liquid and the mercury. ये जहां मिलेंगे उसको आप जी कह रहे हैं, सीधी लाइन खींच दी आपने यहां तक, ठीक है, ये जी बन गया, ये डेटम हो गया आपका। हाइट अबव दिस डेटम अप टू द सेंटर ऑफ दिस पाइप इज h1 एंड द हाइट फ्रॉम द डेटम टू द टॉप ऑफ mercury is h2, okay, and you know that we also know the specific gravity of this liquid, and we should know the specific gravity of this liquid, which is mercury. So we can easily calculate by relative measurements and by applying the formula. So you know that h1 is the height of liquid in the left limb. If I draw a simple line at the center, then right side is called right limb, left side is called left limb. So that's why it is written here, this is limb, limb, limb. h2 is the height of heavy liquid, which is normally mercury, but you can change this liquid as well. So the height of the heavy liquid in the right limb above datum is h2. H is the pressure in the pipe expressed in terms of head of water, okay? H वो प्रेशर है जो इसमें आप नोट कर रहे हैं, तो इस पाइप के अंदर प्रेशर है जो आपने फाइंड करना है, ठीक है। ये H और ये H तो गिवन है ना, इसमें जो प्रेशर है इन द फॉर्म ऑफ H हम फाइंड करेंगे, ठीक है। बेसिकली ये P है, लेकिन हम उसको प्रेशर हेड की फॉर्म में करेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास है ना, आपको याद हो तो हमने लिखा था जी, P इज इक्वल टू गैमा नॉट H एंड S इज इक्वल टू गैमा नॉट पावर गैमा W. It means P is equal to gamma W S gamma W into H, okay, so divided by gamma W you get SH. So P over gamma is equal to SH, okay, so we can write here ये ज़हन में रखें, this is equal to, in our case this is equal to H and this is equal to H1 और H2, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये H वो प्रेशर है जो आपने फाइंड करना है, ये H वो है
जो लिक्विड कॉलम में मौजूद है, यानी जो लिम्स के अंदर जो मौजूद है H1 H2, ठीक है। तो इसको सामने रखते हुए अगर आप हम यहाँ पे आ जाए तो we are going to apply the equation to calculate pressure in manometer. So we know S1 is specific gravity of light liquid, S2 is specific gravity of heavy liquid. Now pressure in left limb above datum. This is left limb, this is right limb, okay. So pressure in the left limb, आप लेफ्ट साइड पे देखें तो आपके पास ये हैवी लिक्विड भी है और लाइट लिक्विड भी है, ठीक है। तो प्रेशर इन द लेफ्ट लिम्ब इज H प्लस S1 H1। H वो प्रेशर है जो इस पाइप के अंदर आ रहा है, जो आपने फाइंड करना है। H1 ये हाइट है, सो मल्टी SH1 प्लस H is the equation of the left hand side. Now for the right hand side, S2 H2, okay, S2 H2. So we are supposing that, we are considering that the pressure on the left side applied by the light liquid should be equal to the pressure applied on the right side. अगर हम ये कंसिडर नहीं करेंगे तो हम प्रेशर फाइंड नहीं कर सकते। हम लेफ्ट साइड पे जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है हम कंसिडर कर रहे हैं कि राइट पे उतना ही प्रेशर लग रहा है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई द इक्वेशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, बोथ ऑफ दीज इक्वेशन, okay, you will get H plus S1 H1 is equal to S2 H2 and H is equal to S2 H2 minus S1 H1. So it means you can find the pressure in a manometer if you know the specific gravity of heavy liquid and H of heavy liquid and specific gravity of light liquid and H of light liquid. बस ये सिंपल इक्वेशन आप ज़हन में रखें, ठीक है। अगर आपको ये इक्वेशन समझ आ गई तो फिर अगली डिफरेंशियल मैनोमीटर और बाकी की आपको जो चीज़ समझ आ जाएगी। देखिए बिल्कुल सिंपल है, आपको सिर्फ दो चीज़ें चाहिए। दो लिक्विड हैं, दो लिक्विड की दो चीज़ें हैं, एक उस लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी है, एक उस लिक्विड की हेड है H, ठीक है, H1 या H2, ठीक है। ये दो अगर आपके पास हैं तो यू कैन कैलकुलेट द प्रेशर, ओके। And the quality of manometer is that, the specialty is that you can also calculate the negative pressure as well. अगर यहाँ पे जो प्रेशर आ रहा है जिस लिक्विड का, अगर आप इसको स्क्यूज कर दें तो what happens, the mercury will move towards the left side। अब ये इस तरह मूव करना शुरू कर देगी क्योंकि आपने प्रेशर खींच लिया यहाँ से। For this case, the equation of the left hand side and right hand side, it is changed as compared to the previous one. On the right side you can see that there is no pressure above the datum, so all the pressure is exerting on the negative side of the left side. So on the left side you have H, which is the pressure inside this pipe, okay, S1 H1, okay, up to this level, S2 H2. So by equating the two equations, you get H is equal to minus sign S1 H1 plus S2 H2. So this is called negative pressure. By using other instrument like piezometer cannot be used for the to measure negative pressure, but we can do it by using simple manometers. So we are going to apply by a very simple example. This is the example case. A simple manometer containing mercury is used to measure the pressure of water flowing in a pipeline. The mercury level is the open tube is 60 millimeter higher than that on the left tube. If the height of the water in the left tube is 50 mm, determine the pressure in the pipe in terms of head of water. So you need to find H, this H. The same condition as we draw here, okay. Here you can see that H1 is 50, H2 is 60. What about S1? S1 is 1 because this is
pressure of water. So specific gravity of water is 1. Okay, so that's why this is multiplied by 1. H1 is the depth of water. H2 is the depth of mercury. So H1 is 50, H2 is 60. So simply apply this equation, you will get 760 mm. So you can say that the pressure in the pipe in terms of head of water is 760 mm. Okay. Now what about this? You can also calculate negative pressure. You can see that H1 is 20, H2 is 50, S1 is 1, S2 is 13.6. By applying just this equation, we will get the answer. Okay, minus 68.67 kilopascal. Simple आपने equation में put करनी है. Now this is a very good example. Here you can see in this example, a conical flask is on the right side, having this dimension 2 meters and 3 meters. This is H, starting from this pipe to the datum. Okay, and this is 200 mm. Find the reading of the manometer when the vessel is completely filled with water. The initial condition is that the manometer, the vessel is completely, it is not filled in filled condition. Okay, जब start हुआ तो filled नहीं था, तो ये condition थी जो आपके सामने है. फिर कहता है कि हमने इसको भर दिया, तो मैनोमीटर में क्या रीडिंग्स आएंगी? डेफिनेटली ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन क्या रीडिंग्स होंगी वो हमने देखनी है. ठीक है, तो आपने ये जो फिगर है, इस फिगर को ज़हन में रखना है. सो 200, दिस इज H2. Okay, this is H. So applying the equation, S1 is 1, S2 is 13.6, H is the pressure of mercury in terms of head of water. Let us consider the vessel is to be empty and ZZ be the datum line. Pressure head in the right limb above ZZ is this one. Right limb के ऊपर क्या है? S1, H1. On the right limb, you can only see water. S1, H1. S1 is 1, H1 is equal to H. This is given condition. ये figure दी हुई है इसलिए इसको H कह दिया है. ठीक है. What about the left side? On the left side, we have S2, H2. H2 is 200 mm, S2 is 13.6. So you get H is equal to 2.72. This is 2.72 after calculations. Okay. Now this is the initial condition. After considering that the vessel to be completely filled with water, as a result that the mercury levels goes down by X meter in right lane. कहता है कि इसको completely fill करेंगे तो ये जो surface है ये नीचे चली जाएगी, ये surface ऊपर की तरफ आ जाएगी. ठीक है, इसको हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी. हमारे पास ना इस तरह की कंडीशन है. We are now standing here, somewhere here. This is Z. ठीक है, इसके ऊपर कोई फ्लास्क है. ठीक है, जब इस फ्लास्क को भरेंगे तो ये ना, इसको मैं ये शेड कर रहा हूँ मरकरी को शो करने के लिए. ठीक है, जब आज इसमें भरा तो व्हाट हैपेंस, दिस ZZ will move downwards, this will move upward. वो कहता है कि let's suppose right limb moves downward at X distance. तो Z कितना ऊपर मूव करेगा? ये वाला, ये साइड कितना मूव करेगी? ये भी तो X मूव करेगी ना. क्या ख्याल है? यस सर.
अच्छा, इसको ये है इसका जी। जब आपने एक्स नीचे की तरफ मूव किया, मैं डैश लाइन से शो करता हूं, और ये ऊपर की तरफ मूव कर जाएगी, ये यहां मूव कर जाएगा। ठीक है, तो राइट साइड पे एक्स नीचे आए हैं हम, एक्स लेफ्ट साइड पे कितना ऊपर गए हैं, ये एक्स है। ठीक है, तो जो डेटम आपका है जी वो भी तो नीचे आ गया ना। अब हम अगर इसको मैं लिख देता हूं जी डैश, तो जी डैश से ये डिस्टेंस कितना है, कौन बताएगा? दिस इज 2x। 2x हो जाएगा सर, 2x। 2x, शाबाश, 2x। ये समझ आ गया? एक x हम नीचे आए हैं, दूसरा x हम लेफ्ट साइड पे ऊपर गए हैं, लेकिन डेटम भी नीचे आ गया ना, तो डेटम से आप 2x ऊपर चले गए लेफ्ट साइड पे। तो ये कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, इसको आपने जो ना ज़हन में रखना है। ये देखिए, consider the vessel to be completely filled with water. As a result, let the mercury level goes down by x meters in the right lane and the mercury level go up by the same amount in the left lane. ठीक है, therefore the total height of the water in the right lane कितनी हो जाएगी, x plus h plus 3, 3 plus h plus x, तो h हमारे पास 2.72 है, you get 5 plus 5.76. So pressure head in the right lane is 1 into x plus 5.72. This is S, this is H. Okay. But what about the manometer reading on the left side? 0.2 इसको मीटर में कन्वर्ट किया, प्लस 2x। तो 13.6 से मल्टीप्लाई करें, दिस इज S, दिस इज H. So 2.72 plus 27.2x. By equating this, you get x is equal to 0.115. So the manometer readings becomes 0.2 plus applying here जो 2 into यानी 2x इसकी मूवमेंट हुई है ना, तो यू विल गेट 430 mm. इट मीन्स जो पहले 200 थी, 3 मीटर्स के पानी फिल करने से 433 mm हो गया, तकरीबन 230 mm का इजाफा हुआ है, इस यानी इसने मूव किया ऊपर की तरफ। ठीक है, समझ आ गई? एक्स को आपने बस ख्याल रखना है, आपको कंफ्यूज होगा थोड़ा सा, ये 2x अगर आपको समझ आ गई तो फिर आगे जो है ना वो आसान है। ठीक है, तो नेक्स्ट इज डिफरेंशियल मैनोमीटर। अच्छा, कभी ऐसा भी हो सकता है कि ऐसी कंडीशन आ जाए कि यूं भी तो हो सकता है ना, यहाँ प्रेशर कुछ और होगा, यहाँ प्रेशर कुछ और होगा, क्या ख्याल है? प्रेशर फर्क नहीं होगा? फर्क होगा कि नहीं होगा ना? देखो, डाया ज़्यादा है, वेलोसिटी चेंज होगी, डाया कम है, वेलोसिटी चेंज होगी, तो आपका जो है ना वो प्रेशर भी चेंज हो जाएगा। ये डाया कम है, डाया ज़्यादा है। फॉर दिस केस वी नीड अ डिफरेंशियल मैनोमीटर so that we can differentiate differentiate between the pressure of both these pipes. ठीक है, इस केस के लिए हम इसको कहेंगे डिफरेंशियल मैनोमीटर। डिफरेंशियल मैनोमीटर आपके पास किधर गया, ये ओके, डिफरेंशियल मैनोमीटर है।
ये आपका डिफरेंशियल मैनोमीटर है। देख, दो पाइप्स हैं और बीच में मरकरी घूमेगा इधर उधर। इधर पाइप प्रेशर ज़्यादा होगा तो मरकरी इधर राइट पे मूव कर जाएगा, राइट पे प्रेशर ज़्यादा होगा तो मरकरी लेफ्ट में मूव कर जाएगा। बट आफ्टर कंसिडरिंग द प्रीवियस इक्वेशंस यू कैन ईजिली डेवलप द फार्मूला for right and left limbed here for differential manometer. Okay, consider figure A. Pressure head in the left limb. लेफ्ट साइड पे प्रेशर कितना है? लेफ्ट साइड पे तो आपको एक तो HA जो इसके अंदर है, पाइप के अंदर आपने मेजर करना है, और HB भी आपने मेजर करना है, दोनों का डिफरेंस लेना है। ठीक, HA माइनस HB हमने फाइंड करना है। तो लेफ्ट साइड पे एक HA है, दूसरा हाइट की वजह से है which is S1 H plus H। ठीक है, so you will get this। लेफ्ट साइड पे एक हमारे पास मूवमेंट मरकरी की वजह से है, एक जो है ना दूसरे बी लिक्विड की वजह से है। तो प्रेशर हेड इन द राइट लिम्ब above datum is HB which is going to find from this pipe plus S1 capital H S2 H। तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई। इसमें देखें, इसमें हम कंसिडर कर रहे हैं कि पाइप ए और पाइप बी दोनों में लिक्विड एक जैसा है, यानी वाटर है, मुख्तलिफ भी हो सकता है। उस केस में फिर आप जो है ना S1 वाटर वाले को कह देंगे, S2 जो है ना आप मरकरी को कह देंगे, और S3 इस लिक्विड की डेंसिटी को कह देंगे, इफ़ यू नो द डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी, सॉरी। ये डिफरेंट भी हो सकता है। तो ये सिंपल है, देखें उसी तरह की चीज़ है, दोनों तरफ से पाइप लग के। सो दी लेवल ऑफ टू, हाँ जी, इन दोनों का लेवल पाइप्स का जो है डिफरेंट भी हो सकता है, और इनमें स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है ना इनकी चेंज हो सकती है, यानी डिफरेंट नेचर के जो है ना आप लिक्विड्स यूज़ कर सकते हैं। तो डोंट वरी अबाउट दैट। अगर आपको एक दफ़ा इक्वेशन बनानी आ गई तो फिर तो कोई इशू नहीं है, फिर तो आप कोई मर्जी भी लिक्विड हो, बट द बेसिक्स विल रिमेन्स द सेम। So for this case, on the left limb you have H1 and HA, जिसके अंदर प्रेशर है। ऑन द राइट साइड पे क्या क्या है जी? एक तो आपके पास ये है मरकरी है, एक लिक्विड है, फिर ये दूसरा लिक्विड है। ठीक है, तो देन यूज S1 फॉर लिक्विड A, S2 फॉर लिक्विड मरकरी, S3 विद लिक्विड B। इक्वेशन उसी तरह बनेगी। तो इससे रिलेटेड हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इंशाल्लाह आपको चीज़ समझ आ जाएगी। U-tube differential manometer connects two pressure pipes A and B. A, this is B. The pipe A contains carbon tetrachloride having a specific gravity 1.6। इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड है, लिक्विड है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.6 है, अंडर द प्रेशर ऑफ 120 किलो पास्कल। इसने प्रेशर आपको बता दिया, तो देखिए प्रेशर की फॉर्म में बताया ना। ठीक है, इट मीन्स हम एच निकाल सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो पाइप बी कंटेन्स ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8, इसमें 0.8 है, और इसमें प्रेशर है 200 किलो पास्कल का। तो पाइप ए लाइज 2.5 मीटर अबव पाइप बी। फाइंड द डिफरेंस ऑफ प्रेशर मेड बाय मरकरी एज फ्लूइड फिलिंग यू ट्यूब। ये भी पता लग गया कि इसमें मरकरी है। तो गिवन इंफॉर्मेशन से हमें 2-3-4 चीज़ों का पता लग चुका है। एक तो हमें पता लगा कि जो पाइप ए है इसमें एक जो है ना वो है कार्बन टेट्राक्लोराइड है, उस पर स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है, उसकी डेप्थ दी हुई है, और राइट साइड पे कोई ऑयल है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी का पता है, और ये स्मॉल एच है। तो हमने प्रेशर डिफरेंस फाइंड करना है दोनों में। फाइंड डिफरेंस ऑफ प्रेशर मेजर्ड बाय मर्करी एज फिलिंग फ्लूइड फिलिंग। So we are going to apply the same equation. The only difference is that we know the pressure
इन पाइप ए एंड पाइप बी, ठीक है। ये प्रेशर है जो पाइप में आ रहा है, हमने प्रेशर फाइंड करना है जो मरकरी प्रेशर हमें बताया कि जस्ट मूवमेंट करके ये मूव करेगा ऊपर नीचे, ठीक है, तो हमें पता लग जाएगा। तो वी नो दैट प्रेशर हेड इन पाइप ए, हमें प्रेशर का पता है, प्रेशर हेड फाइंड करना है 120 डिवाइडेड बाय 9.81 विच इज गैमा ए, दिस इज 12.2 मीटर्स मीन। पिछले एक एग्जांपल में हम जो एच ए लेते थे वो 12.2 आ गया। पाइप बी की क्या सूरत हाल है, ठीक है, पी बी ओवर गैमा यू गेट 200 बाय 9.8 यू गेट 20.4 मीटर ऑफ वाटर। मीटर ऑफ वाटर में हमने इसका वो लेते हैं, जब मीटर ऑफ वाटर में लेंगे तो आप जस्ट गैमा ऑफ वाटर से जो है ना वो डिवाइड कर देंगे, ठीक है, ताकि दोनों तरफ यूनिफॉर्म वैल्यू आ जाए आपके पास। जब देखें राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पे आप इक्वल किसी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो दोनों चीज़ें आपस में कैंसिल आउट हो जाती हैं, तो इसलिए 9.81 की यहाँ पे डिवाइड किया 9.81 ताकि मीटर ऑफ वाटर मिले हैं, तो 20.4 आपके पास आ। तो नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई द इक्वेशन। प्रेशर हेड इन पाइप ए above ZZ, HA plus S1 is H1 प्लस SH, ये SH। अच्छा, ये इसमें एक मिस्टेक है, काइंडली नोट कीजिएगा, ये जो आपको ZZ लाइन नज़र आ रही है ना, ये यहाँ से तो ये ब्लैक कलर इधर तक है, लेकिन यहाँ से ये यहाँ तक आएगा, H तक आएगा, H तक। ये शायद बाई मिस्टेक उन्होंने किया, ये यहाँ पूरा आएगा, यानी इधर तक सारी मरकरी है अप टू H, इसलिए उन्होंने मल्टीप्लाई किया SH से, ठीक है। पुटिंग द वैल्यूज, प्रेशर हेड इन पाइप बी अबव ZZ, पाइप बी में तो हमारे पास सिर्फ H है, ठीक है, 20.4 SB into H you get this, so equating you get H is equal to 328 millimeters, ये आपको पता लगेगा 328 millimeters, ये यहाँ तक आएगा, ऊपर तक ब्लैक कर लें। Now we can change the position of the or the direction of the differential manometer, no worries about that, आप चेंज जिस तरह मर्जी ऊपर की तरफ लगा दें, नीचे की तरफ लगा दें, उनकी डायरेक्शन जिधर मर्जी कर लें, बेसिक इक्वेशन का आपको पता है तो आप इजीली जो है ना वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, इक्वेशन बना सकते हैं। अब दरमियान से लाइन खींचें, दिस इज़ लेफ्ट लिम्ब, दिस इज़ राइट लिम्ब, लेफ्ट लिम्ब पे हम देखते हैं तो हमें सिर्फ जो है ना ये लिक्विड मिलता है और इसका H1 मिलता है। जब हम लेफ्ट पे देखते हैं तो हमारे पास दो किस्म के लिक्विड हैं, एक ये बिल्कुल ब्लैकिश है और एक थोड़ा कम ब्लैकिश है, ठीक है, ये मरकरी है और ये बी है, कोई भी लेट्स सपोज, तो सबकी वैल्यूज दी हुई हैं, तो उसी तरह सेम उसी तरह हमने जो है ना उसी तरह फाइंड करना है जैसे हमने लास्ट में किया। देखें, प्रेशर हेड इन द लेफ्ट लिम्ब इज इजी HA minus S1 H1, ठीक है, और राइट साइड पे हमारे पास HB भी है और H3 भी है और H2 भी है, ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जाएंगे प्रेशर कम होगा, दैट्स व्हाई इट्स अ नेगेटिव साइन। तो इक्वेटिंग यू गेट H, you get this equation, okay? तो ये जो तीन क्वेश्चन हैं इसके बिल्कुल सिंपल देख रहे हैं, जितना इसको सॉल्व करेंगे आपको समझ आती चली जाएगी, इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देखें, आप सिर्फ इसकी जो बेसिक इक्वेशन एक अगर आपको समझ आ जाएगी कि इसकी एक हमने लेफ्ट साइड पे का इक्वेशन कैसे लगानी है, राइट साइड पे कैसे इक्वेशन लगानी है, तो ये हर किस्म के एग्जांपल आपके लिए आसानी हो जाएगी, ये सब कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये डिफरेंशियल मैनोमीटर है, ये सिंपल मैनोमीटर है डबल, और ये सिंपल मैनोमीटर है सिंगल यू ट्यूब के साथ, ठीक है। तो एक सिर्फ इक्वेशन बनाएं और एक छोटा सा एग्जांपल जो स्टार्ट में हमने एग्जांपल एक सॉल्व किया वो सॉल्व करेंगे, आपको ये सारी चीज़ें जो है ना सारी वो समझ आ जाएंगी, ठीक है। एनी क्वेश्चन? ये आज का लेक्चर इधर तक है। अब सेक्शन आप ए और बी और ए दोनों आपस में मिल गए हैं,
आप थोड़ा पीछे थे, वरना हम इकट्ठे क्लास आज ले लेते। तो नेक्स्ट टाइम से हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर से आप लोगों को ना इकट्ठा, बल्कि ठहरें आप थोड़ा सा ठहर जाए।